हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू लेक्चर। तो आज हम फंक्शंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज डोमेन, इसे हम कवर करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू कवर डोमेन। So first of all, let me tell you that what all we are going to cover in this lecture. We'll start with the definition of domain. I'll make you understand what domain is. After this, we'll go to domain calculation. See students, what happens is, like, you study log, you study binomial, you study everything, functions and all. In everywhere you'll see this term domain comes, right? Domain of this, domain of that. So what this lecture is, this lecture basically will compile all the domain, like all the domain of a functions in a single video. Like after this video, you're not going to worry in finding domain of any function you'll get. Fine. So let's start with the definition itself, right? What domain is. So domain of a function is all the values set of all the values which we can put in a function to get a defined output or result, whatever you say. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, समझते हैं इसको। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस लाइन का मतलब समझिए, विच वी कैन पुट इन अ फंक्शन। इस लाइन का पहले तो आप मतलब समझिए, राइट? इसका क्या मतलब है? लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। सो व्हेन आई से दैट x1 in this function, what I mean by this is that we have to put y is equal to f of x1. So basically we put the value in terms of variable, and that too independent variable. Here this x is independent variable and this y is dependent variable. Why? Because x doesn't depend upon y, but y depends upon x, right? So whenever we say that we put this value in a function, by this we mean that we have to put the value in the independent variable. I hope I'm clear with this, right? So this was all about domain. Fine. Sorry, if in lame terms I say that y is equal to sine x, let's say sine x. So what all I can put in place of x, and that is what we call as domain, right? Now let me define the domain graphically. What graphically domain means? What graphically domain means? Fine. What graphically domain means? Very important. Very important. What graphically domain means? See, let's say that I'm drawing a graph. Let's say I'm drawing a graph like this. Something like this. Let's say, or let's say only this much portion is our graph, right? Only this much portion is our graph. This is not y is equal to sin x, fine, because y is equal to sin x goes from minus infinity to infinity, right? So what is domain by graph? If I say a domain by graph, if I say graphically, if I say, then domain is what? Domain is the projection of graph on x axis. This is domain. क्या मतलब है इसका? देखो बहुत आराम से समझ में आएगा. See, this is graph. Its projection on x axis means, see, this and this and this. Let's say that it covers from 0 to, let's say it is 2 pi. If I ask you that this, let's say, is y is equal to fx, and if I ask you that tell me the domain of this function, you will tell me that this graph is having projection on x-axis from 0 to 2 pi, and hence its domain of function will be what? Will be 0 to 2 pi. I hope so you know what closed interval and open interval signifies. Here 0 and 2 pi is included, and that's why we have a closed bracket there. Fine, closed continuous bracket there. Fine, so this was domain, right? This was the significance of domain. Yes, this was the definition. This was the graphical terms of domain, right? After this, we are going for straight away for domain calculation.
calculation. So there are some very important points you need to know before you learn calculation, and those are, I'm signifying them in point. Say note one. Note one. First of all, you must remember the domain of some of the standard functions, right? You have to remember the domain of some standard functions, right? Like if I say, let's say, e raised to power x, or let's say a raised to power x, or let's say sin x, or let's say cos x. Fine. Uh, and fractional part of x, and box of x, right? Any more functions here? I'll tell what it is. Just bear with me. अभी bear करो मेरे साथ. अभी और हम चलेंगे आगे, ठीक है? इतना ही रखते हैं. फाइन. ये हम कुछ स्टैंडर्ड इन नोट वन आई एम मेकिंग यू मेमोराइज सम स्टैंडर्ड फंक्शंस डोमेन, राइट? तो इन फंक्शंस का जो डोमेन होता है, इफ आई राइट द डोमेन हियर, इन स्टैंडर्ड फंक्शंस का डोमेन होता है आर. आर मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ये होता है इनका डोमेन, राइट? ये इनका डोमेन होता है. अगर हम दूसरे, ये लेट्स से ग्रुप वन है, अगर हम ग्रुप टू में कुछ भी स्टैंडर्ड फंक्शन है जो हमारे फ्रीक्वेंटली काम आते हैं, फाइन, और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इनका अगर मैं डोमेन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? फ्रॉम -1 to 1. अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि ये कैसे मैं याद करें, राइट? रिमेंबरिंग दिस इज अ टफ टास्क मे बी फॉर यू पीपल. I hope so that if you have learned, if you have came this far, then you must know the graph of these functions, right? Like e raised power x, a raised power x, these graphs, right? If you know these graphs, then you must be knowing, like, just imagine the graph of y is equal to e raised power x, right? एक बार ऐसे सोचो, y is equal to e raised power x is something like this, and if you see the projection of this graph on x-axis, then it is from minus infinity to plus infinity, and this is what the domain is. R means minus infinity to infinity, right? In the same way, a raised power x, sin x, cos x, greatest integer of x, everything you can just verify using your graph. If you remember the graph, I hope so. You memorize the graph, right? These graphs are very important. You must memorize it. Fine. After this, if I say, okay, if I tell you some more functions, let's say, okay, let's say tan x, right? Tan x, or we can say tan x, or we can say sec x. What are their domain? Their domain is r minus 2n plus 1 pi by 2. If you remember the tan x is, if just remember the graph of tan x, it is undefined at pi by 2, 3 pi by 2, odd multiples of pi by 2, and this term signifies odd multiple. Whenever in mathematics you need to write the odd multiples, you write it by 2n plus 1. If you have to write the even multiple, you have to write it with n pi, right? 2n pi, right? Like this. So this was fourth section. If I cot x and cosec x, and the range goes from r minus n pi. Of course, n goes from n is an integer, right? And any more functions then? Any more function? If I say that, for example, any function now you can take by yourself. If you remember the graph, then it's well and good. हाँ, एक जो standard functions होते हैं, I hope so you know them. 1 by x cube, right? So if I talk about 1 upon x, right? Or something like this, 1 upon x raised to power 2n plus 1. Even odd multiple of 1 by x cube, 1 by, if you remember the graph, its graph is something like this, and like this, right? So it is something like r minus 0. R minus 0 means from minus to infinity to plus infinity, excluding 0, right? And if I again tell you sixth function like them, if I say that root x, or we can say that even even root of x, 2n root of x. What its domain? Its domain is from 0 to infinity. It can't be negative, right? It can't be negative. तो ये कुछ standard functions हैं whose domain you must know, you must remember, right? जो कुछ standard functions हैं जो मैंने list किए यहाँ पे, trigonometric है, inverse trigonometric है, ठीक है? ये like if I have written some trigonometric function, then you must know them, right?
तो अगर इतना आपको आता है देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस वाज नोट नंबर 1. लेट्स गो टू नोट नंबर 2. वेरी इंपॉर्टेंट. नोट 2. Yes. Domain should be defined in original form. Very important point. Domain should be analyzed in or defined in original form only. For example, let me give you an example. Let's say if I ask you that find the domain of tan of x. Fine. Then you have to analyze the domain of tan x only, and that is r minus 2n plus 1 pi by 2. Yes or no? You should not do it like this. One way of doing it is like this. Tan x is what? Sin x upon cos of x. Now what I can say that cos x should not be equal to 0, right? Or let me write it in some different form also. I can write it as like this only also, like 1 upon cos x upon sin x, like this, or something like this, right? Just try by yourself to find the domain of this function and this function and this function. All of these are same, like in terms of mathematically they are same, fine, but their domain are different. You find the domain of this function, it's very different, right? So what we have learned from this is that, see here, if you see that sin x is in the denominator, so we can write it as r minus n pi, right? But here it is r minus 2n plus 1 pi by 2. So what we have learned from, okay, if you don't know how to calculate the domain of this function, don't worry, we'll learn it. That's why the video is, right? Just now I'm telling you some notes, some important point which you must know before calculation of domain, right? तो क्या है पहली चीज, डोमेन मस्ट बी डिफाइन इन ओरिजिनल फॉर्म में डिफाइन करना. ऐसे नहीं कि आप मैनिपुलेट करके और आप चाह रहे हो कि आप मैनिपुलेशन वाले का डोमेन निकालो, दैट इज रॉन्ग. ठीक है, दैट इज नॉट मैथमेटिकली रॉन्ग, बट इफ यू कैलकुलेट दे कम डिफरेंट, राइट? तो अच्छा है कि आप ओरिजिनल फॉर्म में निकालो, दैट इज फार बेटर देन. ठीक है, नोट हो गया. जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इफ यू वांट, although I'll be providing the notes of the PDF of these notes. Okay, don't worry. Note 3 is very important. Again, any operation of undefined is undefined. Very important. Sometimes people say like this, if I ask to my students, मैं अक्सर ही पूछता हूँ कि क्या 0 into anything 0 होता है? वो कहते हैं यस सर, हमें तो पता है 0 तो मल्टीप्लिकेशन का राजा है, तो यस ये होता है. बट द फैक्ट इज दिस इज रॉन्ग. हमेशा याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप नहीं लिख सकते. 0 into anything defined is equal to 0. यस, ये सही है. क्या डिफरेंस है इन दोनों में? क्या डिफरेंस है? मैं कह रहा हूं कि एनी ऑपरेशन, यहां पर आप 0 और एक ऐसी चीज जो कि आपको पता ही नहीं है वो डिफाइंड या नहीं है, उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो यू मस्ट नो बिफोर ऑपरेटिंग दैट बोथ द ऑपरेंड मतलब जिनके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है, दे बोथ शुड बी डिफाइंड. अगर वो डिफाइंड नहीं है, वी कैन नॉट अप्लाई द ऑपरेशन. आई होप सो यू आर गेटिंग माय. ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल आपको करवाता हूँ इस पे. एक एग्जांपल करो. चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डोमेन निकालो -x² -1 इंटू रूट ओवर लेट्स से x -1 का होल स्क्वायर. ठीक है, मैं इसको आपसे डोमेन निकाल के बोलूँ. फाइन, इसका आपको डोमेन निकालना है, राइट? जस्ट टेल मी एनी वन वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस विल बी डिफाइंड. कोई भी एक वैल्यू बता दो. आप कहते हो ना 0 into anything defined. अगर क्या मैं x is equal to 1 डाल दूं, if let's say I am putting x is equal to 1, तो ये पोर्शन तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. 0 into ये पोर्शन क्या हो जाएगा? रूट ऑफ -1 हो जाएगा. क्या 0 into -1 is equal to 0? Yes or no? You don't know. नहीं पता आपको. आप 0 पुट कर सकते हो कि नहीं, ये आपको नहीं पता. डिफाइंड आएगा कि नहीं, आपको नहीं पता. क्या समझ में आया इससे? अच्छा, कुछ लोग यहीं पर लगेंगे इसको आयोटा लिख रहे हैं.
इसको सम पीपल विल राइट लाइक दिस, आयोटा इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो इन महान लोगों से निवेदन है कि डोमेन की डेफिनेशन जाके पहले पढ़ें, ठीक है। अब देखो अब देखो अब देखो क्या मैं कहा था, हाँ, आई वाज सेइंग कि x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो until and unless we don't know whether this is defined or not, we cannot apply any operation. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, and this expression is always greater than 0 and minus is applied in front of it, so this expression inside is always less than 0. Dear students, this whole expression is undefined. वैसे I'll formulate it, अब मैं अच्छे से लिखवाऊंगा इसे आगे चल के इसी वीडियो में, बट तब तक के लिए समझ लो कि रूट के अंदर कुछ भी अनडिफाइंड या नेगेटिव नहीं आता है। एवरीथिंग रिटन इनसाइड द रूट शुड बी पॉजिटिव, राइट। सो ये अनडिफाइंड है, राइट। जस्ट अ मिनट, चलो फाइन। अब कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, तो हम क्या समझ में आया कि एनी ऑपरेशन ऑफ अनडिफाइंड इज अनडिफाइंड। नोट 3 था ये, नोट 3 था ये, फाइन। अब नोट थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा इनिशियल स्टेज में, पर ये नोट्स का यू मस्ट नो इट, ठीक है। अगर इनकी नॉलेज आपको नहीं है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू मिस देम, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा बेयर कर लो, इसके बाद हम मेथड्स पे आएंगे तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। इसके बाद एक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो कि इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट्स अ नोशन। मतलब इन्फिनिटी कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है जिसको आप जानते हो, इन्फिनिटी एक नोशन है किसी अनकाउंटेबल चीज को बताने का, ठीक है। इट इज नॉट अ नंबर, इट्स बेसिकली अ नोशन। अच्छा, एक और 1/0 इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी एंड 1/infinity इज नॉट इक्वल टू 0। ये सब फालतू बातें हैं, ठीक है। इन पे कभी मत पड़िएगा कि 1/0 का आप इन्फिनिटी कह रहे हो, और ठीक है, ये आपको समझ में आ गए, ठीक है। यहाँ 1 पॉइंट था, यहाँ 2 पॉइंट था। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स डे। स्टूडेंट्स से बहुत ध्यान से रखिएगा, मेनी टाइम स्टूडेंट्स कमिट दिस मिस्टेक कि वो रूट ओवर एक्स स्क्वायर को एक्स लिख देते हैं। नो, रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तभी आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है। अगर हम दोनों तरफ रूट लेते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 रूट ओवर, तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 आता है, एंड दैट्स वाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आता है। एंड सम पीपल थिंक दैट रूट ओवर 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। नो, रूट ओवर 16 इज ऑलवेज 4। अगर आप रूट एक्स का ग्राफ देख रहे हो ना, तो रूट एक्स का ग्राफ कैसे होता है, वो ऐसा सा होता है, उसमें नेगेटिव तो कहीं है ही नहीं, तो नेगेटिव है ही नहीं तो नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं, यानी रूट ऑफ 16 इज ऑलवेज 4। द मैटर इज दैट रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ एक्स एंड दैट्स व्हाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। आई होप सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हो गया, और बस इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। नोट 3, 4 ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखना। आई होप तो यू हैव बियर्ड विथ मी टिल नाउ। और अब हम चलते हैं हमारे मज़ेदार टॉपिक पे, दैट इज कैलकुलेशन। एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे अब चलते हैं, ठीक है, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे चलते हैं और एक एक चीज़ करते हैं टाइप के हिसाब से। आई जस्ट मेंशन द टाइप्स, ठीक है। टाइप वाइज मैं पढ़ाऊंगा, हर एक टाइप एक डोमेन की टाइप वाइज डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। जैसे टाइप 1 में हम पढ़ेंगे डोमेन ऑफ द टाइप रूट ओवर ए। इस तरह के डोमेन कैसे निकालें, रूट ओवर ए। फॉर रूट ओवर ए टू बी डिफाइंड आप लिख सकते हो टू बी डिफाइंड, या फिर आप कह सकते हो टू बी डिफाइंड या फिर टू फाइंड डोमेन। आपको क्या करना चाहिए, you just have to put a should be greater than or equal to 0. Why? Because anything written inside the root can never be less than 0. That's why for root a to be defined, a should be greater than or equal to 0. I am also getting my point, ठीक है। टाइप 2 एग्जाम्पल इन सब के एक साथ करवाऊंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। कहो तो एक एग्जाम्पल, छोटे एग्जाम्पल करवा देता हूँ, ठीक है, वरना थोड़ी सी दिक्कत होती है कभी कभी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मैं कहूँ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये इवन इट इज डिफाइंड, इसका डोमेन बताओ। तो डोमेन इसका मुझे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अगर आपने वीवी का मेथड पढ़ा है तो एक्स माइनस रूट 3 और एक्स प्लस रूट 3 लिख सकते हैं उसे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। वैसे आप ये वाला आपको याद होना चाहिए, राइट। तो कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 3 तक यूनियन। आई होप सो यू आर गेटिंग इट। अगर ये नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा वेवी कर जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
तो ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये हमारा आंसर कैसे आया, ये हमारा आंसर कैसे आया। हमें सिर्फ एक कंडीशन लगानी है एंड दैट कंडीशन इज वेरी सिंपल कंडीशन, दिस दैट ए शुड बी ग्रेटर देन 0। बस ये कंडीशन लगानी है और हमारा सारा क्वेश्चन हो जाएगा इस टाइप का, ठीक है। ओके, टाइप 1 इज कंप्लीटेड, नाउ लेट्स मूव टू टाइप 2। टाइप 2 is something like log of let's say log a base and let's say here it is b. For this to be defined, ठीक है, अगर ये डिफाइन करना है मुझे, then our a should be greater than 0 and this and is very important, I'll tell you why. This b should be greater than 0 and this a should never be equal to 1. A should never be equal to 1. These three condition, this and signifies that this and this, या हिंदी में कहो तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, देन वी कैन से दैट द डोमेन, बाय दिस वी कैन फाइंड द डोमेन, राइट। एग्जाम्पल करा देता हूँ अभी, log ऑफ x माइनस 3 और x, डोमेन निकालना है हमें डोमेन निकालना है। हम कैसे करेंगे, विल से दैट फॉर इट्स डोमेन टू एग्जिस्ट a should be greater than 0 and b, this should also be greater than 0 and this base should not be equal to 1. तीन कंडीशन है, x greater than 0 and x greater than 3 and x should not equal to x minus 3, कब ये 1 के बराबर नहीं हो सकता, when x is not equal to 4। ये तीनों कंडीशन का अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3 to 4 यूनियन 4 to infinity, और वी कैन से दैट आर, चलो यही सही है, या वी कैन से दैट लाइक दिस 3 to infinity माइनस 4। ये दोनों लिखने के तरीके हैं, दिस वन एंड दिस वन। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप सो पीपल आर विथ मी टिल नाउ और समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। टाइप 3 पे चलते हैं। टाइप 3 जिसमें हम डोमेन सीखने वाले हैं एफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स का। इफ लेट्स से fx has domain d1 and gx has domain d2, then fx plus minus gx, this domain of whole function is what? It is d1 intersection d2. I'll tell you with an example and it will be clear, don't worry. जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं कहूँ साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, इनका डोमेन निकालना है मुझे, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है जो कि सम ऑफ दो फंक्शन है, ठीक है। माइनस में भी हम कर सकते हैं, सिमिलरली प्लस माइनस दोनों में एक ही आंसर आएगा क्योंकि तरीका सेम है। कैसे निकालेंगे हम लोग, विल से दैट सी साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, आर होता है, लिखा है स्टैंडर्ड फंक्शंस में। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 से 1 होता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, -1 से 1 होता है। यस, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। इतना आसान था हमारा टाइप 2। बस मुझे इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है। टाइप 4 दैट इज एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक है। पहली बात, ये तो बहुत ईजी है, अगेन सेम टू सेम, d1 है, ये d2 है, तो इसका इस पूरे का डोमेन क्या हो जाएगा, d1 इंटरसेक्शन d2 हो जाएगा। पर हियर फाई से दैट इसका डोमेन है d1, इसका नहीं डोमेन d2 है, तो इस पूरे का डोमेन क्या हो जाएगा, d1 इंटरसेक्शन d2 तो होगा। इंटरसेक्शन x वैल्यूज, मतलब इसमें हमें एक चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी, बात समझना बहुत लॉजिकल सी है, दैट इट एफ एक्स बाई जी एक्स जैसा कोई टर्म है, देन फॉर इट टू बी डिफाइंड जी एक्स शुड नेवर बी इक्वल टू 0, है कि नहीं। क्योंकि जी एक्स 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो गया और अनडिफाइंड हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर ये बात आपको समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि हमें इंटरसेक्शन क्या करना पड़ेगा, हमें या फिर इंटरसेक्शन कह लो या फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, वैल्यूज ऑफ x फॉर विच gx इज इक्वल टू 0। आई होप सो यू गेटिंग माई पॉइंट। आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल करवाता हूँ।
इसका तो एग्जांपल आप कर ही लोगे, D1 इंटरसेक्शन D2 करना है, कोई खास काम नहीं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल करवाता हूँ, ठीक है। इसका एग्जांपल करवाता हूँ मैं, लेट्स से अच्छा, मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फंक्शंस में ln x नहीं लिखा था, एक सेकंड रुक जाओ, चलो ठीक है, यहाँ बता देता हूँ। स्टैंडर्ड फंक्शन में एक फंक्शन ln x भी होता है, वो मैं मिस कर गया था, ठीक है, अभी लिखवा देता हूँ। खैर, अगर आपको ग्राफ पता है तो आप ग्राफिकली निकाल सकते हो, ओपन 0 से ओपन इन्फिनिटी तक। चलो देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है ln x अपॉन साइन x, इसका मुझे डोमेन निकालना है, ठीक है, डोमेन निकालना है। तो काफ़ी टफ काम तो नहीं है ये, इसका D1 है, लेट्स से इसका D2 है। तो D1 क्या है, D1 विल बी आर व्हाट, D1 क्या होगा हमारा और D2 क्या होगा, ये दोनों आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो D1 विल बी वो आर क्या होगा, हाँ, ओपन 0 से इन्फिनिटी। क्यों ऐसा होगा, क्यों होगा, आप ग्राफ देख लो, ग्राफ ऐसा सा होता है, यानी 0 से इन्फिनिटी तक, 0 पे डिफाइन नहीं होता है तो ओपन रहता है। D2 इज व्हाट, D2 इज आर। तो हमें अगर इसका डोमेन निकालना है तो हम क्या करेंगे, D1 इंटरसेक्शन D2 करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, आर इंटरसेक्शन 0 टू इन्फिनिटी, और जो कि हमारा 0 टू इन्फिनिटी ही आएगा। बट डियर स्टूडेंट्स, ये गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज साइन एक्स प्रोड्यूसेस 0 एट n पाई, और n पाई पे अगर 0 प्रोड्यूस करता है और साइन एक्स इज इन द डिनोमिनेटर, तो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन डियर स्टूडेंट्स। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे all such values of x for which the function is 0, so हमारा n पाई से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई होप सो दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू पीपल, आई होप सो आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ लिया आपने तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा कौन सा टाइप था, ये टाइप 4 था, हम टाइप 5 पे चलते हैं। 9 या 10 टाइप्स हैं, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। टाइप 10 बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन फॉर कॉम्पोजिट फंक्शंस, मच अवेटेड होगा ये, थोड़ा सा ये समझने वाली चीज़ है, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें हम एक थंब रूल फॉलो करते हैं आउटसाइड टू इनसाइड का, ठीक है। लेट्स से हम f ऑफ g ऑफ x रखे हैं, तो ये गो विद द थंब रूल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड लाइक दिस, हम ऐसे जाते हैं, ठीक है। अब आपको एग्जांपल करवाता हूँ, आपको समझ में आएगा कैसे समझना। एक एग्जांपल कहूँगा तुरंत समझ में आएगा। ई रेस्ट पावर लेट्स से हमारा लेट्स से 10 या फिर ऐसा कोई फंक्शन लिखा हो जो अनडिफाइंड हो कहीं पे, ई रेस्ट पावर लेट्स से 10x, ठीक है, ई रेस्ट पावर 10x। तो हम आउटसाइड से इनसाइड जाते हैं, इसका क्या मतलब है, मतलब है कि कॉम्पोजिट फंक्शन में हम सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को देखते हैं। आउटसाइड क्या है, f है, इनसाइड क्या है, g है। हम f को देखें, हम f के पास गए, हम f को देखें, f हमें मिला e या e को कह सकते हो ई रेस्ट पावर x। ग्राफ याद करो, ऐसा सा होता है, एवरीवेयर डिफाइंड। तो इसका क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है, r होता है, इसका तो r होता है। तो tan x के लिए अब हम आउटसाइड से इनसे जा रहे हैं ना, तो हमारी कुछ वैल्यू कर्टेल होगी, बट जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड r, फिर हम सीधा अंदर चले जाएंगे। अभी समझ में आएगा, टेंशन ना लो, अगर नहीं आ रहा है अभी समझ में आएगा, एग्जाम्पल 2-3 करवाएंगे, इस पर समझ में आएगा। हमने पहले e पे देखा, ई पे कोई कंडीशन हमें नहीं दिखी, हम चुपचाप अंदर गए, हमने tan x को देखा, हमें tan x में कंडीशन दिखी r माइनस 2n प्लस 1 पाई/2। हमने सिर्फ एक ही जगह कंडीशन आई है gx पे, यही हमारा डोमेन हो गया। क्यों ये डोमेन हो गया, क्योंकि हमारे fx पे कोई कंडीशन ही नहीं आई। अभी समझ में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी समझ में आ जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स, अब देखो क्या करना होगा। अब देखो, हम बाहर से अंदर जा रहे हैं, सबसे पहले हमने मिला साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स के साथ प्रॉब्लम है क्या, कि उसका ग्राफ ऐसा होता है और वो -1 से 1 तक ही डिफाइंड होती है। अब ई रेस्ट पावर एक्स के पास एक प्रॉब्लम आ गई, दैट ई रेस्ट पावर एक्स शुड नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम -1 to 1। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है, tan x यहाँ कुछ भी प्रोड्यूस करे, ई रेस्ट पावर एक्स को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वाई, बिकॉज ई रेस्ट पावर एक्स वाज डिफाइंड इन r माइनस इन्फिनिटी। बट हियर ई रेस्ट पावर एक्स इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। इसके पास एक प्रॉब्लम है ई रेस्ट पावर एक्स के पास, क्या, दैट इट शुड हैज टू प्रोड्यूस अ वैल्यू बिटवीन -1 to 1। डियर स्टूडेंट्स, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। इंटरसेक्शन, ई रेस्ट पावर एक्स को एक्स पे करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है,
हमें डोमेन में क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स देखनी है, वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्स। सो हमें ये भी तो देखना है कि एक्स की किसी वैल्यू पे ई रेस्ट पर एक्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, साइन इनवर्स एक्स को प्रॉब्लम ना हो। बट ये देखने का तरीका क्या है, हमारा थंब रूल, आउटसाइड टू इनसाइड। हम गए साइन इनवर्स एक्स के पास, भाई तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या क्या, यस प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ -1 से 1 में डिफाइंड होता हूँ, इरेज पर एक्स के कहूंगा, इरेज पर एक्स काइंडली प्रोड्यूस वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, इरेज पर एक्स कहेगा ठीक है, आई विल प्रोड्यूस वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1 दिस, बट फॉर अ कंडीशन दैट एक्स के ऊपर ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और डियर स्टूडेंट्स, ई रेस्ट पर एक्स को कभी प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छा बंदा है, -∞ टू इन्फिनिटी डिफाइंड होता है। तो यहीं तक हमारा क्वेश्चन सीमित रहेगा, यहीं तक हमारा क्लियर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसमें और मज़ा आएगा, इसमें और मज़ा आएगा, इसमें और मज़ा आएगा। लेट्स से मैं एक और क्वेश्चन ले लूँ, लेट्स से साइन इनवर्स ऑफ ln x ले लूँ। अब मजा आएगा डियर स्टूडेंट्स। अब देखो मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ जो आ सकता है। आउटसाइड कोई तकलीफ नहीं है, अंदर वाले का डोमेन आ जाएगा। बाहर वाले को तकलीफ है, अंदर वाले को नहीं है, तो बाहर वाले अंदर वाले पे बाहर वाले की कंडीशन आ जाएगी। अब दोनों को तकलीफ है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि किसी का भी डोमेन आर नहीं है। साइन इनवर्स एक्स का क्या डोमेन है, इसका डोमेन क्या है -1 to 1, और इसका डोमेन क्या है 0 to इन्फिनिटी। तो दोनों का ही डोमेन क्या है, दोनों को ही प्रॉब्लम है ना, दोनों को ही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि किसी एक को प्रॉब्लम है किसी दूसरे को नहीं है, राइट। तो दोनों को ही प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, तो क्या होगा। अब बहुत मज़ेदार चीज़ आने वाली है आपके सामने और आप बहुत अच्छी चीज़ सीखने वाले हो। थंब रूल काम करेगा हमेशा, थंब रूल हमेशा काम करेगा। थंब रूल विल से आउटसाइड टू इनसाइड डियर स्टूडेंट्स, आउटसाइड टू इनसाइड। बाहर जाओ ना आप, बाहर जाओ और अंदर देखो। सबसे पहले हम साइन एक्स पे देखेंगे। साइन एक्स को कहा -1 से 1 तकलीफ है ना, विल रिक्वेस्ट ln x की ln x काइंडली प्रोड्यूस वैल्यू इन बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। बट स्ट्रेट अवे ln x, अच्छा इसको कई लोग कह रहे होंगे इसको सॉल्व नहीं किया, अब इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है, टेंशन मत लो, अभी इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं, दोनों तरह से, ग्राफिकली भी और वैसे भी, टेंशन ना लो। अभी बस आप ये समझो कि क्या हम करने आए हैं, बाकी सॉल्व तो अभी करवा दूंगा। तो यहाँ क्या आया, ln x आया। ये क्या सॉल्व कराने का क्या मतलब है, कुछ लोग ये भी पूछोगे सॉल्व कराने का क्या मतलब है। सी, हमें x की वैल्यू चाहिए होती है डोमेन में, यहाँ तो e रेज़ पावर x की वैल्यू आएगी ना, वो भी करेंगे सॉल्व। अब देखो ln x है, -1 से 1 है, तो अब ln x कहेगा सर मुझे भी तो तकलीफ है, साइन इनवर्स एक्स को तकलीफ थी तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ किया कि मैं -1 से 1 में प्रोड्यूस करूंगा वैल्यू, बट मुझे भी तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है, ln x को दिक्कत क्या है, ln x को दिक्कत है कि इसका डोमेन 0 to इन्फिनिटी ही है। तो डियर स्टूडेंट्स बात समझो, साइन इनवर्स का वेरिएबल क्या था, साइन इनवर्स का आर्गुमेंट क्या था, ln x था। तो ln x में यहाँ परेशानी झेली, ठीक है, परेशानी झेली ताकि साइन इनवर्स x खुश रहे। इन द सेम वे ln x का वेरिएबल क्या है, x है, तो ln x को खुश करने के लिए कौन जिम्मेदारी झेलेगा, कौन जिम्मेदारी झेलेगा, हमारा x झेलेगा। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी, या हम ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं। ये दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है, क्योंकि दोनों खुश रहेंगे तभी साथ में रहेंगे। हम क्या सीखे अभी तक, एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। थंब रूल है आउटसाइड से इनसाइड। सबसे पहले बाहर वाले को देखेंगे, भाई तुमको तकलीफ तो नहीं है, भाई कहेगा नहीं है, तो विल आस्क द आर्गुमेंट कि भाई इसको तकलीफ हो रही है, इसको अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लो। फिर हम उस भाई से पूछेंगे भाई तुम्हें तो नहीं तकलीफ है कोई, वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो आर में डिफाइंड हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो हम कहेंगे ठीक है भाई तुमको कोई तकलीफ नहीं है तो तुम रहो आराम से। देखो ये वाला केस है, बाहर वाले को तकलीफ है अंदर वाले को नहीं है। पर अगर बाहर वाले को नहीं है तकलीफ, बाहर वाला कह रहा है कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं तो हमेशा डिफाइंड हूँ, मेरा आर्ग्यूमेंट को मजे से खेलने दो, मैं हमेशा डिफाइंड हूँ। तो मैं सीधा आर्ग्यूमेंट के पास पहुंचा, आर्ग्यूमेंट भाई आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, कहा मेरे को तो दिक्कत है, tan x कहेगा मुझे तो दिक्कत है। तो हम कहेंगे अरे आपको अगर दिक्कत है तो आपका आर्ग्यूमेंट झेल लेगा आपका दिक्कत। तो क्या है आपका आर्ग्यूमेंट, वो है x। तो x शुड नॉट बी, मतलब x शुड बी r - 2n + 1 π/2, यही हमारा डोमेन हो जाएगा। बट तीसरी कंडीशन है हमारी कि दोनों को प्रॉब्लम है, तो हमारा थंब रूल अगेन आउटसाइड से इनसाइड चलेगा। हम सबसे पहले बाहर वाले की प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे, कैसे, अंदर वाले पे कंडीशन इंपोज करके। कंडीशन इंपोज कर दी, अब अंदर वाले से पूछेंगे भाई आपको दिक्कत है, वो भी बताया तो उसकी भी कंडीशन इंपोज कर दिया। अच्छा अब जो लोग इसको कह रहे थे सॉल्व करने के लिए, उनके लिए देख लो, ई रेज़ पर एक्स शुड बी लेस देन, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। या तो आप ln ले लीजिए दोनों साइड,
या तो आप ln ले लीजिए दोनों साइड पे। ln, एक बात याद रखना कि अगर a इज लेस देन c इज लेस देन b ऐसा कुछ है और आप दोनों तरफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन लगा रहे हो, जैसे कि एक कोई इंक्रीजिंग फंक्शन लेट्स से ln a, ln c, ln b, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। देखो यहाँ जो था, देखो यहाँ जो था वही यहाँ पे भी है, राइट। बट अगर डियर स्टूडेंट्स दिक्कत तब आती है, दिक्कत तब आती है जब हम एक डिक्रीजिंग फंक्शन लगा रहे होते हैं तो हमारा साइन फ्लिप कर जाता है, फ्लिप कर जाता है, राइट। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे, बट अभी वो हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड आप लोग वेट करो बस, मैं थोड़ा सा चार्जिंग पे लगा लूँ लैपटॉप। ओके, जस्ट अ मिनट, ओके, स्ट्रेट फॉर 1 मिनट। जस्ट अ मिनट। सॉरी फॉर द डिले। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम आपको बताए थे कि इंक्रीजिंग फंक्शन का इनइक्वालिटी के अक्रॉस लगाएं तो हमारी इनइक्वालिटी सही रहती है, राइट। तो अगर सिमिलरली हम देख लें, अगर हम देख लें, यस, तो हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ तो हम यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन में ln लगा सकते हैं। तो ln -1, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू ई रेस्ट पावर x लेस देन इक्वल टू ln 1। तो सबसे पहली चीज़ तो ln -1 डिफाइन नहीं होता, राइट। ln -1 डिफाइन नहीं होगा तो क्या डिफाइंड होगा। तो इन सब झंझटों से पढ़ने से अच्छा है, इन सब झंझटों से पढ़ने से अच्छा है हम हमारा ग्राफ से देख लें, हम हमारे ग्राफ से देख लें, ठीक है, हमारे ग्राफ से देख लें। देखो ग्राफ से देखना कितना आसान है, देखो हमारा ई रेस्ट पर एक्स का ग्राफ कैसा आता है, कुछ ऐसा सा आता है, ऐसा सा आता है। अब इसमें हमने -1 ड्रॉ किया, -1 ड्रॉ किया, ये वाली। अच्छा, इस कंडीशन का मतलब क्या है, ई रेस्ट पर एक्स शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 एंड ई रेस्ट पर एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, दोनों कंडीशन है। ये तो हमेशा डिफाइंड होगा डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमेशा होगा, ये हमेशा होगा। क्यों, क्योंकि देखो ना हमेशा ई रेस्ट पर एक्स का ग्राफ ये -1 से तो बड़ा ही है, तो ये तो आर होगा। बट आर एंड है, एंड ई रेस्ट पर एक्स शुड बी लेस देन -1, लेस देन 1, ये पॉइंट होता है 1,0, सॉरी 0,1, ये पॉइंट होता है 0,1। तो इससे तो छोटा होना चाहिए, 1 से तो नीचे होना चाहिए। और 1 से नीचे ई रेस्ट पर एक्स कब हो सकता है, जब -∞ से 0 तक हो, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -∞ से 0 तक हो और 0 पे क्लोज भी हो, क्योंकि 0 पे ही 1 के बराबर होता है। अगर इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा डोमेन आ जाएगा -∞ टू 0 डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑन अ सिमिलर नोट अगर हम इसको करना चाहें, अगर हम इसको करना चाहें तो ln x, इसका भी हम वही काम कर लेते हैं जैसा हम कर रहे हैं, हम ग्राफ बना लेते हैं। इनइक्वालिटी को अक्सर कोशिश करो कि ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करो, आसान होता है, ठीक है, आसान होता है। जैसे कि ln x का ग्राफ हमने कैसे बनाया, ग्राफ इसलिए याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट क्या है, दिस इज 1,0। नाउ वी आर आस्किंग -1 लाइज समवेयर हियर। अगर ये नहीं आता है तो एक बार जाके पढ़ो कि हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी यूजिंग ग्राफ, ठीक है। तो हमारा क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -1, अच्छा ये -1 है तो ये वैल्यू क्या आ रही होगी, पहले ये बता दो सब लोग। अगर ये -1 है, क्या है ये चीज़, -1,0 है, अरे यार 0,-1 है, सॉरी, ये चीज़ 0,-1 है, ये चीज़ 0,1 है। तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ जिसको हमको एनालिसिस करनी है वो हमारा यही है, यही है। या फिर कह लो, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका अब हम देख लेंगे वैल्यू कि यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के ये पॉइंट तक, ये पॉइंट तक, ये पॉइंट तक हमारा है, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ ये क्या पॉइंट होगा, इस पे वैल्यू क्या है, -1 है, तो ln अगर हम 1/e लें तो हमारा आ जाएगा, तो ये पॉइंट होगा 1/e,0, ये पॉइंट क्या होगा 1/e,0। देख लो ln 1/e पुट करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। देखो इस पॉइंट पे -1 आया है इसकी वैल्यू, इस पॉइंट पे 1 आ रहा है, यानी ये पॉइंट क्या होगा, e,0 आएगा,
पता होना चाहिए आपको ln e इज इक्वल टू 1 और ln 1/e इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो हम यहाँ से बहुत आराम से क्या बता सकते हैं, बहुत आराम से क्या बता सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से, इस पूरे एक्सप्रेशन से हम क्या बता सकते हैं हमारा कि यहाँ से क्या पता चला हमें कि 1/e से लेकर के 1/e से लेकर के कॉमा ई तक होगा हमारा ग्राफ, ठीक है। इंटरसेक्शन 0 से इन्फिनिटी तक, इंटरसेक्शन क्या 0 से इन्फिनिटी तक, तो 0 से इन्फिनिटी और इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा 1/e से ई ही आएगा डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा रिक्वायर्ड डोमेन है। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना ऑफकोर्स आपको आना ही चाहिए, मस्ट कंडीशन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। कॉम्पोजिट फंक्शन यही समाप्त होता है और मोर और लेस वी आर डन। कौन से टाइप पे थे मैं तो भूल गया, एक बार टाइप देख लेता हूँ कौन सा टाइप था। टाइप 10 था कॉम्पोजिट फंक्शन, टाइप 10 नहीं होगा यार, इतना जल्दी टाइप 10 आ गया। टाइप 5 था कॉम्पोजिट फंक्शन, वाह। टाइप 5 था कॉम्पोजिट फंक्शन, सॉरी, ओके। टाइप 5 था कॉम्पोजिट फंक्शन और टाइप 6 हमारा अब होने जा रहा है आगे। कॉम्पोजिट फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है इसमें, ठीक है। टाइप 6, टाइप 6 में आप ऐसा कर सकते हो ना कि एक ही याद कर लो, एक्स रेज पर एक्स, इसका जो डोमेन होता है ना, इट इज़ ऑलवेज आर प्लस, ठीक है। ग्राफ वगैरह इसका बनाएंगे एओडी में तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा इसका कि ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए आप बस याद कर लो कि अगर एक्स रेज पर एक्स है, या फिर अगर मैं आपको एफ एक्स रेज पर जी एक्स है, अगर एफ एक्स रेज पर जी एक्स का आपको डोमेन लिखूं तो इसका अगर मुझे डोमेन निकालना है तो मैं कहूँगा कि एफ एक्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ये दोनों सेम ही चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप देखो तो ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, ये आपको याद कर लेना चाहिए, ये आपको याद कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एफ एक्स रेज पॉज जी एक्स है, इसका हमें डोमेन निकालना है, यू जस्ट हैव टू पुट एफ एक्स ग्रेटर देन 0। देखो एक्स रेज पर एक्स है, एफ एक्स जी एक्स है, वी जस्ट हैव टू पुट एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0, ये इक्विवेलेंट है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप सो ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। एक टाइप 7 कर लो, एक टाइप 7 कर लो जो बच्चे बहुत गलती करते हैं, a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी इज नॉट इक्वल टू a इंटू सी डिवाइड बाई बी। ये कभी मत करना, गलत है ये। ऑलवेज रिमेंबर कि इसको, ये हमेशा इक्वल होगा a इंटू सी डिवाइड बाई बी वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर इसमें क्या डिफरेंस है, सही चीज़ सेम ही चीज़ तो लिखी है ना, बस ये चीज़ आपने एक्स्ट्रा कर दी है। बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपने सिर्फ इतना लिखा है ना, आपकी एक कंडीशन छूट गई है, इंटरसेक्शन वगैरह लोगे ना तो आपका आंसर गलत आने लगेगा। तो ये बिल्कुल ही नहीं, ये कंप्लीट स्टेटमेंट याद रखिएगा कि c नॉट इक्वल टू 0 हमेशा साथ में जाता है, हमेशा याद रखिएगा, लाइटली मत लीजिए इन चीज़ों को, ठीक है। टाइप 8 एक और लास्ट कर लो, लास्ट कर लो, लास्ट, रूट ओवर a डॉट बी शुड बी इक्वल टू रूट ओवर a इंटू रूट ओवर b ओनली इफ, जैसे यहाँ पे कंडीशन लगाए हो ना, एक सेकेंड, ठीक आ रही थी फिर आई नहीं। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं, देखो a डॉट बी इसके इक्वल कब हो सकता है, ओनली इफ a डॉट बी इज ग्रेटर देन 0। मैथमेटिकली इस चीज़ का क्या मतलब होता है कि a और b हैव सेम साइन, a एंड b हैव सेम एस आई जी एन साइन। मैं हमेशा साइन को एस आई जी एन कहता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे एस आई एन साइन समझने लगते हैं, ठीक है। तो खत्म है, खत्म है, टाइप 8 है। इतने में आप, इफ़ यू हैव दिस मच नॉलेज यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ डोमेन, एनी क्वेश्चन ऑफ डोमेन, ठीक है। नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन करते हैं, अब सीधा क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट लगाओ आप। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। देखो रूट ओवर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, पहले इसको करो, ठीक है, पहले इसको करो। इसके बाद आप करो और क्या करोगे, अच्छा एक ऐसा भी कर लो, रूट ओवर एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस 2। बड़ा मज़ेदार है, ये दोनों क्वेश्चन है बहुत मज़ेदार, ठीक है, करो के देखो। और एक क्वेश्चन अभी सिंपल सिंपल प्लेन प्लेन ले रहे हैं, फिर अभी आगे और कॉम्प्लेक्स लेंगे, टेंशन ना लो। ये नहीं कि छोड़ दिए वीडियो कि सर अच्छा क्वेश्चन ही नहीं ले रहा है। आओ, तीनों क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले और दूसरे में आप क्या रहोगे, अच्छा पॉज कर लो, पॉज कर लो, पॉज करो, सॉल्व करो, 5 4 3 2 1। थैंक यू सो मच। अब करते हैं इसको सॉल्व।
मैंने कहा था फॉर रूट ए टू बी डिफाइंड क्या a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो x माइनस वन अपॉन x माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। कहाँ से आया? वेवी का मेथड। कहाँ पढ़ा है? शुरू में पढ़ा है। नहीं पढ़ा है जाके पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। नहीं पढ़ा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेवी का मेथड। ये सब आपको टिप पे होना चाहिए। एक लाइन में देखो, मैं जैसे लिखा हूँ वैसे लिखना है। अब बताओ ये कैसा फंक्शन है? ये इट इज समथिंग लाइक रूट ए बाई रूट बी। एफ एक्स बाई जी एक्स है, एफ एक्स बाई जी एक्स है। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन क्या होती है एफ एक्स बाई जी एक्स के लिए? एफ एक्स बाई जी एक्स के लिए क्या होता है? अगर इसका डोमेन D1 है, इसका डोमेन D2 है, तो हमारा आंसर होता है D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस एक्स की सच वैल्यूज सच दैट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आओ इसको सॉल्व करते हैं, आओ इसको सॉल्व करते हैं। D1 क्या होगा? पहले बताओ D1 क्या होगा? D1 will be x minus 1 should be greater than or equal to 0, x should be greater than equal to 1। D2 क्या होगा? x minus 2 should be greater than equal to 0, x should be greater than equal to 2। ठीक है, अब बताओ x की सच वैल्यूज सच दैट डिनोमिनेटर बिकम 0, ऐसी कुछ वैल्यूज बताओ। हाँ, ऐसी एक वैल्यूज हैं, x बिलोंग्स टू 2। तो अब हम क्या कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्या, ये 1 से इन्फिनिटी, ये ये सारी चीज़ों में एंड है, राइट? तो 1 से बड़ा, 2 से बड़ा, और यहाँ 2 ना हो, तो आप देख सकते हो कि x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, 2 टू इन्फिनिटी। यहाँ आप देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो हमारा क्या आएगा? 2 से इन्फिनिटी आएगा, बट ये -2 हट जाएगा यहाँ से, तो हमारा क्या फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, ये दोनों आपको लग रहा होगा सेम चीज़ें हैं, पर इसका डोमेन देखो और इसका डोमेन देखो कितना अलग है। हाँ, और एक बेस्ट एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन, एक बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो मैंने आपको फालतू में तो शुरू में जितने आपको नोट्स के पॉइंट लिखवाए वो ऐसे तो नहीं लिखवाए थे। मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, पॉइंट 2, कि ऑलवेज फाइंड द डोमेन इन द ओरिजिनल फॉर्म। क्या आप इस टर्म को ऐसा लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। आप रूट अलग कर लो। क्या भाई, रूट ए बाई बी को मैं रूट ए बाई रूट बी लिख सकता हूँ क्या? आप कहोगे यस लिख सकते हो सर, लेकिन डोमेन तो अलग अलग आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, पर डिफाइन करते समय डोमेन अलग आएगा, इसलिए डोमेन निकालो तो ओरिजिनल फॉर्म में निकालो। क्लियर है? ये भी कर लो, रूट ओवर x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स, ये भी कर लेते हैं। ठीक है, रूट ओवर x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, देख लो डिफाइन कब होगा रूट का फंक्शन? जब ये और 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वेवी कर्व सॉल्व करना आना ही चाहिए। देखो मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, इतना स्पीड आपकी भी हाथ की होनी चाहिए, और आ जाएगी अगर आप सही से पढ़ रहे हो ना तो आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ अच्छे और लेते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन और लेते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन ये देखो, 1 अपॉन लॉग एक्स बेस पर 5, ये क्वेश्चन है। आराम से करो, आराम से करो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा देना चाहता हूँ। हाँ, एक और चीज़ जो नहीं लिखवाया हूँ। ओके 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 हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ मिस किया, कि या फिर मिस क्या ही किया, आपको ये बात पता होनी चाहिए, पता होगी भी। a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड बी डिफाइंड, a शुड बी डिफाइंड। क्या मतलब है? अभी समझा रहा हूँ। देखो आराम से समझते हैं। ठीक है, आराम से समझते हैं। देखो यहाँ 1/a लिखा हुआ है। एक बात बताओ, खैर 1/a का मैंने लिस्ट नहीं किया, पर 1/a का पता होगा आपको। 1/a कब डिफाइंड होगा? व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज डिफाइंड। अगर नहीं पता है तो यहीं से पढ़ लो, कोई ऐसा नहीं कि अलग से पढ़ लिया दिक्कत हो गई। क्वेश्चन के थ्रू ही सीख लिया आपने, और बेस्ट अप्रोच होती है क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच। तो 1/a कब डिफाइंड होगा? व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज डिफाइंड। तो ये कब इक्वल टू 0 होगा? व्हेन log x बेस पे 5 जो है, अखीन पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, तो ये दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0 ऑल्सो एंड दिस शुड बी डिफाइंड। और ये डिफाइंड कब होगा? देखो डिफाइंड कब होता है लॉग? व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसको डिफाइन करना है, तो इसमें
जो बी है वो तो मुझे पता है ग्रेटर देन जीरो है, हम ए के लिए कह सकते हैं एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वन। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन, ये कह सकता हूँ इसका। एंड ये जीरो कब नहीं होगा, ये जीरो कब हो सकता है, लॉग एक्स बेस पे वन होता है तभी जीरो होता है ना, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता राइट, ये जीरो हो नहीं सकता है, तो इसका फाइव हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, फाइव बेस पे जीरो कभी आएगा नहीं, आप खुद ड्रॉ करके देख लो ग्राफ, कभी जीरो आता है क्या, जीरो आएगा ही नहीं, आएगा सिर्फ कहाँ पर, वन पर आता है। ठीक है, ठीक है, तो वन अगर नहीं आएगा, नहीं आएगा, वन तो है नहीं, फाइव दिया हुआ है, तो फाइव और इन सब का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, क्या आना चाहिए। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक बात समझ रहे हो, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू, ये गलती आप लोग भी करोगे, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो लिखा है, तो फाइव नहीं आर होगा। आर का क्या मतलब है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कुछ भी डाल दो, जीरो तो कभी आएगा ही नहीं। तो आर और इसका इंटरसेक्शन करोगे तो यही आ जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। एक और ऐसे ही करवाता हूँ, एक और ऐसे ही करवाता हूँ, चलो एक और करो ऐसा, पहले ये कर लो आसान सा, लॉग ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, वैसे भी मैंने करवाया होगा आपको पहले भी शायद से, एक्स प्लस वन। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करोगे बताओ, इसको सॉल्व कैसे करोगे, हमको पता है सबसे पहले कंडीशन एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वन शुड नॉट बी इक्वल टू वन। ठीक है, ऐसा अगर है तो ये कब हो सकता है, ओनली वन एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक एक करके सॉल्व करते हैं, एंड इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू माइनस वन, एंड ये एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए होगा। भाई एक्स स्क्वायर वैसे ही एक पॉजिटिव नंबर होगा या जीरो होगा, उसमें हम वन और ऐड कर देंगे तो ये हमेशा ही जीरो से बड़ा होगा, तो एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। और ये सिर्फ कब होगा, सिर्फ तब होगा व्हेन आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, शुड नॉट बी इक्वल टू वन व्हेन, सिर्फ आर हमेशा नहीं होगा, सिर्फ जीरो पर हो सकता है तो उसको हटा दिया मैंने, सिर्फ जीरो पर हो सकता है तो मैंने उसको हटा दिया। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो कि माइनस वन से ज़ीरो आ रहा है, माइनस वन से ज़ीरो आ रहा है, यूनियन ज़ीरो टू इन्फिनिटी आ रहा है, या फिर एक और बात आप क्या कह सकते हो, एक और बात आप कह सकते हो माइनस वन टू इन्फिनिटी माइनस ज़ीरो, दोनों तरीके हैं लिखने के लिए सेम चीज़ का। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन हो गया। हाँ एक और अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं, वन अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। चलो इसको करो, छोटे छोटे मोटे क्वेश्चन हैं ये, मोटे मतलब एसेंस में। देखो वन बाई ए टू बी डिफाइंड के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ ए शुड बी डिफाइंड, ए शुड बी नॉट बी इक्वल टू जीरो, एंड ए को डिफाइंड होना चाहिए, दो कंडीशन है, ए खुद भी तो डिफाइंड होना चाहिए है कि नहीं, तो डिफाइंड करना है, करते हैं। ए जीरो के इक्वल टू कब नहीं होगा, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, सॉरी, क्योंकि इंटीजर पे बिलोंग करते हैं तभी तो ए क्या होता है, ए जीरो के बराबर कब होता है, ये चीज़ जीरो के बराबर कब होती है, ओनली व्हेन इंटीजर इज देयर, मॉड ऑफ एक्स जीरो कब होता है, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, तभी होता है। तो अगर एक्स इंटीजर को ना बिलोंग करे तो ना होगा, और ये डिफाइंड कब होगा, व्हेन दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, डियर स्टूडेंट्स, डिफाइंड कब होगा, देन दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, डिफाइंड अच्छा अच्छा एक गड़बड़ कर दिया, हाँ देखो डिफाइंड होने के लिए, डिफाइंड तो कई बार नहीं होता ना, डिफाइंड कब होगा ये, इट इज़ डिफाइंड इन आर राइट, तो ए टू डिफाइंड होता है आर में, तो एक्स डिफाइंड इन आर हो जाएगा। हाँ डिफाइंड तो ये हमेशा होता है ना भाई, ग्राफ देख लो आप लोग, इसका देख लो, ग्राफ तो देख लो, हमेशा डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये जीरो कब नहीं होगा, व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आई, तो इसका हम डोमेन क्या लिख सकते हैं, आर माइनस आई, मतलब आई के अलावा हम आर में कुछ भी पुट करेंगे तो हमारा वैलिड रिजल्ट आएगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ठीक है, ठीक है, और थोड़ा सा टफ करें, और थोड़ा सा टफ करते हैं, लॉग एक्स बेस पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, आप बताओ तुरंत करोगे, अब आप क्या करोगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वन, करोगे, एंड ये ग्रेटर देन जीरो कब हो सकता है, ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब ये जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर आप ग्राफ देखो इसका तो ये हमेशा ही जीरो से बड़ा है, जीरो के बराबर कब होता है, इंटीजर्स पर होता है, तो ये इंटीजर्स पे ही जीरो होगा, तो ये आर माइनस आई हर इंटीजर पे ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वन। इन सब का अगर हम डोमेन निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
ये हम लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी, एक तरीका तो लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी माइनस ऑल इंटीजर्स। अगर हम माइनस ऑल इंटीजर करते हैं तो उसमें 1 भी तो हट जाएगा, और 1 भी हट जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। या तो एक और तरीका है करने का, ऐसे 0 टू 1, 1 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीजर, तो कोई मतलब नहीं है। ये तरीका ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इंटीजर में आई भी हट जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा यार, कितने तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं खतरनाक। और 1 अपॉन लॉग कर लें 3 बेस पे x प्लस 1, तो देखो सबसे पहले 1 बाई ए टू बी डिफाइंड, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये तो बार बार बता रहा हूँ। तो लॉग ऑफ 3 बेस पर x प्लस 1, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, पहली चीज़। एंड ये खुद भी तो डिफाइंड होना चाहिए, दैट इज x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, 3 1 के बराबर भी नहीं है और 0 से बड़ा भी है, तो इसकी कंडीशन हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। लगाने को आप लगा सकते हो 3 ग्रेटर देन 0 एंड 3 नॉट इक्वल टू 1, सब ये अभी आर है, ये भी आर है, इंटरसेक्शन है, तो जो भी आपके यहाँ आंसर आ रहा होगा वही आ रहा होगा, ठीक है। ये 3 के बराबर कब नहीं होगा, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 हो जाए, तो ये कभी, क्योंकि log 3 बेस पे 1 हमेशा 1 पर 0 आता है, तो 1 ये एक्सप्रेशन 1 कब होगा, ये एक्सप्रेशन 1 कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो x को 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 नहीं होगा। एंड x शुड बी ग्रेटर देन -1, और ये सब तो फर्जी टर्म्स हैं। इन दोनों को देख लोगे तो आपका सीधा सीधा आंसर जाएगा -1 से 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। और एक और तरीका क्या लिखने का, आर माइनस सॉरी आर नहीं -1 से इन्फिनिटी -0। डियर स्टूडेंट्स, ये डन है। आई होप सो आई वॉज क्लियर विथ एवरीथिंग आई हैव टॉट इन दिस क्वेश्चन और इन दिस पोर्शन, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ, सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। आई होप सो यू पीपल इन्जॉयड इट, ठीक है। इस तरह से अगर आप डोमेन रेंज की कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताया, अगर उस पर आप ध्यान दो और जितने क्वेश्चंस करवाएं उस पर ध्यान दो, ठीक है। और जो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन बताएं उनका ध्यान दो, तो यू विल बी वेरी इजीली एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ डोमेन का कोई भी क्वेश्चन आपका कभी भी नहीं फंसेगा, राइट। बस आपको करना क्या है, आपको जो शुरू में पॉइंट्स बताएं उनको बहुत ध्यान से देना है, लाइटली नहीं लेना है, और आपको कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए कि कौन सा क्या है तो कैसे करें, ठीक है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लास्ट में पढ़ा, जो मैं थ्योरी में मिस कर गया था, वो क्या है, वो एक बार लिस्ट करा दे रहा हूँ कि देखो, फॉर रूट ए टू बी डिफाइंड हमने क्या पढ़ा, ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके साथ एक और कंडीशन है, ए शुड बी डिफाइंड ऑल्सो 1 बाई ए टू बी डिफाइंड हमने क्या पढ़ा, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बट इसके साथ एक और कंडीशन है कि ए शुड बी डिफाइंड ऑल्सो, ऐसा नहीं कि अनडिफाइंड चीज़ है तो हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और बस अगर इतना पता है तो आपको सारा चीज़ हो जाएंगी आपकी, ठीक है। आई होप सो आई वाज clear with each and every portion of this question or this topic, ठीक है। if you have any doubt regarding this or what is the upcoming video or anything like that, you can post it in the comment section or you can DM me telegram, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बाद हम रेंज लेके आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद कल तक में हम रेंज लेके आएंगे। रेंज में इन द सेम वे आई एम टीचिंग हियर, मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रेंज पढ़ाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप मेथड ओनली। आई विल लिस्ट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच कम्स इन रेंज अंडर सर्टेन 9 to 10 टाइप्स, और अगर आपने उतना समझ लिया है तो आप आने वाला कोई भी क्वेश्चन दिमाग लगा के कर सकते हो। फाइन एवरीवन, I hope so you people really enjoyed the session. Thank you so much for bearing me till now for around 58 minutes now. Thank you so much. We'll meet again tomorrow or yeah, to day after tomorrow with a session on range. Thank you so much people. I hope so you enjoyed it. Thank you. Bye bye.